Hello everyone, welcome back to the coding destination. So my name is Chirag Vaishnav and the continuation of the must do coding question series MDCQ must do coding question series. Today we are going to solve a rainwater trapping problem, right? So बहुत standard problem है, बहुत जगह आपको मिल जाएगी, ठीक है. तो इट इज़ काइंड ऑफ एक नेसेसरी होती है कंडीशन कि इसको किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, राइट. तो आज की प्रॉब्लम में हम ये करने वाले हैं, ठीक है. तो फर्स्ट टाइम आई सॉ दिस प्रॉब्लम, मुझे बहुत डिफिकल्टी रही थी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में. नाउ बट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट देर आर फ्यू क्वेश्चंस जिसमें इसकी सेम अप्रोच लग सकती है, राइट. सो आई विल एडवाइस कि वीडियो एंड तक देखना. So in this video we will be discussing rainwater trapping. So the problem statement is this: given a non-negative integer representing an elevation map, right, where each width of each bar is 1, compute how many water is able to trap after raining, right. तो प्रॉब्लम यार ये है कि हमें एरे की फॉर्म में ऐसा दिखाया गया होगा कि इतने ब्लॉक्स यहाँ पे पड़े, इतने ब्लॉक्स यहाँ पे पड़े, इतने ब्लॉक्स यहाँ पे पड़े. अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे. तो हमें कहना है कि अगर उसमें पानी भरता है तो कितना पानी भरेगा यार, ठीक है. तो बहुत सिंपल अप्रोच से मैं इसको बताऊंगा आपको, ठीक है. तो जैसे ये एग्जांपल हमें गिवन है, ठीक है. तो ठीक है, तो मैं एक बार इसकी बाउंड्री बना देता हूँ. जैसे एक्स एक्स एक्स, जहाँ पे मैं एक्स एक्स कर रहा हूँ वहाँ पे ये भाटे पड़े हैं, स्टोन्स जो भी आप कह सकते हो इनको, ठीक है. एक्स एक्स एंड एक्स, ठीक है. तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें पड़ी हैं. तो अब आपको क्या करना है कि अगर बारिश होती है, इफ़ देर इज़ अ रेन, सो what are the chances that where the water will be stored? So water will be stored like this, right. So this is the only way water will be stored. But this we can visualize, okay यार यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे है तो पानी इतना भरेगा, है ना. But how to make computer understand this, how to make an algorithm so that our system will understand it, how to make an algorithm so that our code will output the water trapped, right. So this is a tricky question. So this is how we have to do. So how this input is being given to us, right. So this is 3, this is 0, this is 2, this is 0 and this is 4. 3 blocks are given, 2 blocks are given, 4 blocks are given, right. So this is this is the way the input is being given to us. Now we have to say कि how many water is trapped, ये मुझे इसमें रिटर्न कराना है. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 3 लेवल है, तो यहाँ पे 3 लेवल तक हुआ, यहाँ पे 3 लेवल तक हुआ, यहाँ पे भी 3 लेवल तक हुआ है, पर यहाँ पे 2 लेवल तो स्टोन ने एडजस्ट कर रखे हैं. तो इट इज़ 3 + 1 + 3. So 3 + 1 + 3, that we having 7 is an output, and here we can see 7 is the only output, right. So this is the way that you have to deal with this, right. So now let's see how we can implement this particular part into an coding algorithm, okay. But before starting with this, I would like to mention about Newton School. Also, I made a Telegram group of this particular channel, the Coding Destination by Chirag Vaishnav. So link will be in the description. Do join it, right. I personally believe that you should join it. There we share the regular updates and all the things about our channel, right. So this is it. So let's get started with the Newton School. So Newton School is an edtech platform which helps you to become a full stack developer, right. So it is having a 6 months long curated course which helps you to become a full stack developer. And the best thing about Newton School is that it helps you to get placed. And once you are placed, then you have to pay Newton School, right. And also it is connected to a lot of companies which helps you to get placed, right. So let's visit their website, that how the guys are doing at Newton School. So here we are at the Newton School's website. So यार बहुत सारी चीज़ें चल रही है, कोडिंग कॉन्टेस्ट, लॉन्च पैड, हायर फ्रॉम अस एंड लॉट मोर थिंग्स आर आउट देयर, ओके. So here we can see Google, Zomato, MI, Byju's, Unacademy, Meesho, Policy Bazaar, Snapdeal. ऐसा लग रहा है मैं ब्रांड डील्स की प्रमोशन कर रहा हूँ, बट नो, दीज आर द कंपनीज एफिलिएटेड विद न्यूटन स्कूल. So you can think how beneficial it can be for you guys, right. So this is it for Newton School. If you are interested in it, link will be in the description. Do check it out. Amazing opportunity the Newton School guys are providing to us. So this was it for Newton School. Now let's get back to our question, that rain water trapping, ठीक है. तो यार रेन वाटर ट्रैपिंग बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है. तो एक बार मैं इसको यहाँ पे 3 0 2 0 4, ठीक है. तो यहाँ पे देख लेता हूँ, और राइटिंग के लिए एक बार कोई हम अच्छा तरीका ढूंढेंगे. ये हमारा है x x x, 3 है, ये है 0, ये है 2, x x, ये 0, ये है 4, x x,
एक्स एक्स, ठीक है। अब बारिश होती है तो यार पानी भरने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि पानी कहाँ भरेगा। पानी वहीं भरेगा जहाँ पे उस पोजीशन के रिस्पेक्ट में दोनों पोजीशन उससे बड़ी है, ठीक है। यहाँ पे एक तो पानी भरेगा, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे मैं डैश बना जहाँ पे डैश बना रहा हूँ वहाँ वहाँ पानी भर रहा है। जहाँ जहाँ डैश है वहाँ पानी भरेगा, जहाँ एक्स है वहाँ स्टोन्स है, ठीक है। तो यार जहाँ पे यहाँ पे मैं डैश बना रहा हूँ वहाँ पानी भर रहा है, सही बात है, ठीक है। अब पानी आप ये देखो जीरो पे भर रहा है, तो जीरो से लेफ्ट में सबसे बड़ा कौन है, 3। जीरो से राइट में सबसे बड़ा कौन है, 4, ठीक है। तो अब पहली बात तो ये होना चाहिए कि या तो इसके लेफ्ट और उसका राइट उस पोजीशन से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, मान लिया। उसका लेफ्ट और राइट उसका लेफ्ट और राइट उस पोजीशन को एक्सक्लूड करते हुए, जीरो इंडेक्स के अलावा उसका लेफ्ट, जीरो इंडेक्स के अलावा उसका राइट कौन बड़ा है, 3 और 4, ठीक है। तो एल मैक्स और आर मैक्स, यार मैं दो चीज़ें ले लेता हूँ यहाँ पे। एल मैक्स कितना है मेरा, 3 है भाई, जीरो के लिए बता रहा हूँ मैं, मतलब ये वाला 0 1 2 3 4, दिस इज इंडेक्स, इंडेक्स के लिए बता रहा हूँ, 1 इंडेक्स के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। I1 है ना। तो एल मैक्स तो यार मेरा 3 हो गया, आर मैक्स यार मेरा 4 हो गया, ठीक है। एल मैक्स मैंने 3 ले लिया, आर मैक्स मैंने 4 ले लिया। तो अब एल मैक्स मेरा 3 है, आर मैक्स मेरा 4 है, तो मुझे क्या देखना है कि मेरे से सबसे लेफ्ट में बड़ा कौन है यार, 3 बड़ा है। सबसे राइट में बड़ा कौन है यार, 4 बड़ा है। अब लेफ्ट में 3 बड़ा है, राइट में 4 बड़ा है, तो हाउ वाटर विल बी फिल्ड, वाटर विल बी फिल्ड यार, ऐसा तो है नहीं कि भाई 4 है तो यहाँ तक पानी भर जाएगा, इसमें यहाँ तक तो पानी भरेगा नहीं। जो मिनिमम है, मतलब इन दोनों में जो मिनिमम है वहीं तक पानी रिटेन होगा ना। डैम में क्या होता है, okay, so let me just connect my laptop to charging. Okay, so sorry for the inconvenience guys. So डैम में क्या होता है, डैम में पानी स्टोर्ड इन अ फॉर्म के यहाँ पे है, और ये वाटर लेवल है, ठीक है, और ये सी शोर है सपोज, ठीक है, ये नदी का किनारा है, तो नदी के किनारे तक ही तो पानी भरेगा, राइट। अब जैसे ये जो बीकर है सपोज ये है, तो इसमें यहाँ तक ही तो पानी भरेगा, यहाँ तक, या अगर यहाँ पानी भरेगा तो ओवरफ्लो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि लोअर बाउंड को एक्सीड कर जाएगा, ठीक है। तो दोनों वॉल्स, अगर सपोज मेरे पास 2 वॉल्स है तो उसमें जो मिनिमम वॉल है वहीं तक पानी स्टोर होगा, ठीक है। इसको और एक सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। सपोज आपके पास एक टैंक है, ठीक है, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टैंक। इक्वल नहीं है टैंक, ठीक है। सपोज एक ट्यूबवेल है या ऐसा कुछ है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा पानी भरा हुआ है। अगर पानी इसको एक्सीड करेगा तो गिर जाएगा, यहाँ से ड्रिप करना शुरू कर देगा। क्या कभी पानी का लेवल यहाँ तक राइज करेगा, नो, इट विल नॉट राइज टू दिस लेवल। तो मुझे क्या करना है कि दोनों वॉल्स का जो मिनिमम है उतना ही पानी स्टोर होगा, ठीक है। ये चीज़ हमें दिल में बिठा लेनी है, ठीक है। तो मैंने बिठा ली भाई। अब मैं आपको इटरेट करके दिखाता हूँ, सेम चीज़ इटरेट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं 3 पे हूँ, सपोज मैं 0th इंडेक्स पे हूँ, ठीक है। एल मैक्स, आर मैक्स और आई 0, मैं 0th इंडेक्स पे हूँ, तो 0th इंडेक्स पे एल मैक्स तो क्या है, 0th इंडेक्स पे एल मैक्स मेरा 3 ही है, क्यों, क्योंकि एरे पीछे है ही नहीं। आर मैक्स कितना है भाई, 4 है, तो मिनिमम ऑफ एल आर और 4, ठीक है। तो मिनिमम क्या है इसका, उतना ही पानी स्टोर होगा, ये हमने अभी डिस्कस कर लिया। 3 है भाई, 3 तक का पानी स्टोर होगा, 3 तक का पानी स्टोर होगा। अब मैं देखूंगा इस पोजीशन पे कितने स्टोन्स पड़े, राइट। अगर कितने स्टोन्स पड़े हैं, अगर मेरे स्टोन्स हैं तो फिर वहाँ पे तो मैं पानी उस लेवल तक पानी नहीं हो पाएगा ना। सब वही मैं आपको वही वाला एग्जांपल वापस देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं पानी भर रहा था, ठीक है, यहाँ पे ओवरफ्लो हो गया, तो अब ये तो मुझे चीज़ क्लियर हो गई कि भाई मिनिमम लेना पड़ेगा। अब अगर यहाँ पे मैंने एक्स भाटे भर दिए तो इतने लेवल अब ये पानी मेरा कम ही स्टोर होगा। पहले पानी यहाँ भी स्टोर रहता है पर यहाँ स्टोर नहीं होगा, भाटे रख दिए ना, स्टोन्स आ गए वहाँ पे, तो वहाँ पे पानी स्टोर ही नहीं हो पाएगा, राइट। सो दिस इज़ द डील। तो अब क्या होगा कि अब पानी हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो मिनिमम जो है उसको 3 जो भी m आया, मिनिमम लेट से m है, मिनिमम माइनस a ऑफ i, उतना पानी स्टोर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो मेरा पानी स्टोर होगा, ये वाटर स्टोर लिख देता हूँ यहाँ पे, वहाँ वाटर स्टोर होगा 0, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ I1 के लिए भाई 1, एल मैक्स कितना है 3, आर मैक्स कितना है 4, मिनिमम कितना है 3 माइनस 0 कितना हो गया 3, सही बात है, ठीक है।
अब मैं करता हूँ भाई I2 के लिए, I2 आ गया हमारे पास, अब आ गया भाई, अच्छे से ले आते हैं यार, आ रहा है तो ठीक है। एल मैक्स 3 है अभी भी, आर मैक्स अभी भी मेरा 4 है, मिनिमम 3 है, पर यहाँ पे मेरा 3 - 2 होगा 1। आप देख सकते हो एक ही ब्लॉक में पानी स्टोर हुआ है, 2 में तो स्टोन्स थे, तो स्टोन्स ने एक्वायर कर ली स्पेस, राइट। तो एक वापस, अब वापस में जब इंडेक्स 3 पे आया तो सिमिलर केस है, 3 4 3 ये, और 3 क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 0 है। अब यहाँ पे एल मैक्स कितना है मेरा, एल मैक्स कितना है 4 है ना, और मिनिमम कितना हो जाएगा 4। एल मैक्स मतलब वो उस पोजीशन से लेके पीछे तक, तो वही सबसे ग्रेटेस्ट अपनी पोजीशन में। एल मैक्स भी इतना है, आर मैक्स भी 4 है, तो मिनिमम कितना हो गया 4, और इसमें स्टोन्स कितने हैं 4 - 4, तो यहाँ पे 0, ठीक है। तो अब इसको ऐड कर दो and we will have 7 as our answer. So this is the way we have to think. This logic will be applicable to all the cases. So now let's move to the code part, so to better it in a better to understand it in a better way, right? So int rain water, तो वेक्टर इंट ए हमें गिवन होगा, इसमें एक एरे गिवन होगी, और हमें इसमें से रिटर्न कराना है कि हमारा क्या चीज़ है, ठीक है। तो इंट एन इज इक्वल्स टू ए डॉट साइज ले लिया हमने, ठीक है। तो इंट एन इज इक्वल्स टू ए डॉट साइज। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक अ इंट लेफ्ट मैक्स ऑफ एन एंड इंट राइट मैक्स ऑफ एन, ठीक है। अब मैं लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स बनाने के लिए, अब मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट इंडेक्स के लिए तो लेफ्ट तो वही होगा, ठीक है। तो लेफ्ट ऑफ 0 इज इक्वल्स टू A0 है ना, एंड फॉर इंट I इज इक्वल्स टू 1 I लेस देन n I प्लस प्लस, लेफ्ट I इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ इट विल बी मैक्सिमम ऑफ AI कॉमा लेफ्ट I - 1, ठीक है। तो लेफ्ट I - 1 के कैलकुलेट द सबसे मैक्स अभी तक जितना है, और उतना ये स्टोर करेगा, ठीक है। सिमिलरली इंट राइट ऑफ n - 1 इज इक्वल्स टू a ऑफ n - 1, लास्ट भी ऐसे इनिशियलाइज करूँगा, फॉर इंट I इज इक्वल्स टू n - 2 I ग्रेटर देन इक्वल टू 0 I माइनस राइट max is equals to maximum of a of I comma right max of I plus 1, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगी यहाँ पे, और यहाँ पे लेफ़्ट ही डिफाइन किया था, राइट मैक्स नहीं है, मैंने राइट ही डिफाइन किया है, तो उधर भी मैं राइट ही कर देता हूँ, ऊपर भी राइट ही कर देता हूँ, क्योंकि राइट ऑफ I इज इक्वल्स टू, ठीक है, मैक्स ऑफ, यहाँ से मैक्स हटा दो और यहाँ से मैक्स हटा दो, ठीक है। नाउ इट्स फाइन, राइट कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, लेफ्ट और राइट इटरेट कर लिया, मेरे पास लेफ्ट मैक्स है राइट मैक्स है, अब तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम बन गई है ये। फॉर इंट I इज इक्वल्स टू 0 I लेस देन n I प्लस प्लस, ठीक है। सम प्लस इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे मैं सम रिटर्न कराऊंगा, इंट सम इज इक्वल्स टू 0 से इनिशियलाइज कर दिया, सम प्लस इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ लेफ्ट I कॉमा राइट I माइनस AI, ठीक है। तो ये हमारा जो होगा सम होगा, और ये हमने करा दिया रिटर्न। सो in this way we are going to calculate. So this was it for the code for rainwater trapping problem. So thank you guys. If you like this video, do give a thumbs up, subscribe to this channel, and thanks for watching. Also, if you are interested in Newton School's amazing opportunity, do enroll in it guys. Thanks.